મેનેજમેન્ટ જેવો વિષય છે એ દરેક માટે શીખવો બહુ જરૂરી છે. जब हम कहते हैं मैनेजमेंट संचालन तो मैं उसको इस तरह ब्रेक करता हूँ, सत्य प्लस चालन. तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत जोरदार बात कही जो आज तक उस पर ही मैं चलता हूँ. हमारे परिवार में, हमारे समाज में रिकॉर्ड बनाने का कितना बड़ा स्कोप है. आई स्कोर्ड 63 बोर्ड में और स्कूल में मेरा आया 3rd रैंक. उचित के अनुचित बनावे छे. भाई क्या उचित है और क्या अनुचित है 3 चीजों पे निर्भर करता है. तो वो पिताजी जो ऐसे कंधे झुकाकर स्कूल गए थे जब 6 मार्क आए थे, अब वो गए हैं तो एक अलग मोटिवेशन के साथ प्रिंसिपल से मिल रहे हैं. ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે દોસ્તો. મજાની વાત એ છે કે આજના સમયમાં સવાર જો સરસ મજાની થઈ જાય અને સવારમાં મજા પડી જાય ને તો આખો દિવસ સરસ હળવો અને મજેદાર બની જતો હોય છે. અને એના માટે જ તમે અને હું આપણે બધા ભેગા થઈએ છીએ આ સરસ મજાના મંચ પર ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં. એક સરસ સુભાષિત છે સંસ્કૃતનું, જેમાં એમ કહેવાય છે અલસસ્ય કુતો વિદ્યા, અવિદ્યસ્ય કુતો ધનમ, અધનસ્ય કુતો મિત્રમ, અમિત્રસ્ય કુતો સુખમ. એટલે આળસ કરો તો વિદ્યા નથી મળતી, વિદ્યા નથી તો ધન નથી, ધન નથી તો મિત્ર નથી, અને સાહેબ જો મિત્ર નથી તો સુખ કયું. હા, એટલે આખી વાત આમ છે કે વિદ્યા, આપણે જે જ્ઞાન અર્જિત કરીએ છીએ એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જીવનમાં. અને સાથે સાથે વાત મેનેજમેન્ટની પણ છે કે એક વસ્તુ જો પ્રોપરલી મેનેજ થાય છે, જેમ કે આપણું એજ્યુકેશન, તો બાકીની વસ્તુઓ કેટલી સરસ રીતે મેનેજ થાય છે અને બધું જ મેનેજ થયેલું હોય છે ત્યારે આપણને સુખ મળે છે. આજે મેનેજમેન્ટની વાત એટલા માટે કરું છું કે આજે આપણી સાથે જે વાત કરવાના છે ને એ મજાની વાત એ છે કે એ મેનેજમેન્ટ ગુરુ છે, મેનેજમેન્ટ શીખવે છે. દોસ્તો એવું કહેવાય છે કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કાકે લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદીઓ દિખાય. એટલે આજના સમયમાં આપણે ભગવાન તો હવે એવું છે નહીં કે તપ કરો ને પ્રગટ થઈ જાય છે, કળિયુગ ચાલે છે. તો હવે ભગવાન સરખું કોણ, ભગવાનને આપણી સુધી પહોંચાડનારું કોણ? તો કે ગુરુ. એવા ગુરુ કે જે આપણને જીવનના પાઠ ભણાવે, એવા ગુરુ કે જે આપણને જીવનને વ્યવસ્થિત રીતે અરેન્જ કેવી રીતે કરવું, મેનેજ કેવી રીતે કરવું એ શીખવે. તો આજે જે વિભૂતિ આપણી સાથે છે એ એક્રેડિટેડ મેનેજમેન્ટ ટીચર છે બાય ઓલ ઇન્ડિયા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, ન્યૂ દિલ્હી. ઘણી બધી જગ્યાએ તેઓ મેનેજમેન્ટ શીખવે છે, ભણાવે છે. હાલમાં શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલ છે ત્યાં એસોસિએટ પ્રોફેસર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. ઘણા બધા રિસર્ચ પેપર છે જે ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ્સમાં એમણે પબ્લિશ કર્યા છે. 7 પુસ્તકોના ઓથર છે. અને મજાની વાત એ છે કે જે રીતે સમજાવે છે, જે રીતે વાત કરે છે, તો મેનેજમેન્ટ જેવો આમ ભારે લાગતો શબ્દ પણ આપણને મજેદાર લાગવા માંડે છે. તો ચાલો આપણે આજે વાત કરીએ, મળીએ ડૉક્ટર પ્રશાંત પારીખ સાથે. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. અરે સર જરાક હિન્દીમાં પણ વાત કરશે આપણી સાથે. તો સર ये जो मैनेजमेंट, यू आर क्वाइट यंग, मैंने इतनी जो इंट्रोडक्शन दिया तो लोगों ने એવું પણ લાગે કે કોઈક એવા વ્યક્તિ હશે કે જેમણે 50-60 વર્ષની ઉંમર પાર કરી લીધી ને આ બધી ઉપલબ્ધિઓ મેળવી લીધી હશે, બટ યુ આર ક્વાઇટ યંગ. તો સર આ જે મેનેજમેન્ટ પ્રત્યેની આપની રુચિ છે અને ખાસ કરીને જે રીતે આપ શીખવો છો, આ બધાનું બ્લેન્ડ છે, તો આ શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? ક્યારથી તમને એવું લાગ્યું કે આ મેનેજમેન્ટ જેવો વિષય છે એ દરેક માટે શીખવો બહુ જરૂરી છે? तो इसकी शुरुआत हुई एक्चुअली स्कूल लाइफ से. જી. एक किस्सा है स्कूल का, रियल लाइफ किस्सा. व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो बहुत सारे लोगों से हम ये सुनते हैं कि गणित एक विषय है जो परेशान करता है 10वीं के स्टूडेंट्स को. मैं भी उनमें से एक था. गणित से मतलब डर लगे हाँ. कि बस कैसे जैसे भगवान पास हो जाऊं बोर्ड में. और बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है तब पेरेंट्स को, आस पड़ोस वालों को, रिलेटिव्स को बहुत उम्मीदें आपसे होती है कि हमारा बच्चा बोर्ड में है, वो बच्चा बोर्ड में है, 10वीं बोर्ड है, पढ़ाई कर, यहाँ से आगे करियर का जंप है दूसरा. तो मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होती है, फरवरी में प्री बोर्ड एग्ज़ाम होती है. प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुई, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आई स्कोर्ड डिसेंट, सारा एवा गुण मेळव्या. लेकिन जब मैथ्स आया तो मेरे 100 में से 6 मार्क थे. 6.
अब स्कूल जो था वो 100% रिजल्ट की बातें होती है ना, कि हमारा तो 2-3 साल से 100% रिजल्ट आ रहा है बोर्ड में, तो ये लड़का हमारा रिजल्ट बिगाड़ेगा। तो पिताजी को बुलाया गया, प्रिंसिपल बैठे हैं सामने, पिताजी ने काफ़ी उनसे मिन्नतें की, और मैं क्या सोचता था कि भाई मेरे पिताजी 9वीं पास है, 9 क्लास पढ़े हैं, मैं कैसे जैसे 10वीं पास हो जाऊं, फिर मुझे उनका बिजनेस ही तो ज्वाइन करना है, आगे पढ़ना नहीं है। उस वक्त ऐसे सोच चलती थी दिमाग में। तो काफ़ी बातचीत हुई, बहस चली प्रिंसिपल के साथ, दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ, बहुत मिन्नतें की। तो फाइनली उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है बोर्ड में बैठने देते हैं, बट आपको बहुत संभालना पड़ेगा। जब हम वहाँ से वापस लौट रहे थे स्कूल से, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत ज़ोरदार बात कही, जो आज तक उस पर ही मैं चलता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरे पास हमारे परिवार में, हमारे समाज में रिकॉर्ड बनाने का कितना बड़ा स्कोप है। तू पहला लड़का बनेगा खानदान का जो 10th पास होगा, पहला लड़का बनेगा जो 12th पास होगा, और पहला ग्रेजुएट तू बन सकता है, पहला पोस्ट ग्रेजुएट बन सकता है, आगे तेरी मर्जी। पता नहीं मेरे को क्या ऐसा हुआ वो टाइम पर कि चलो रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और 1 महीने में मैथ्स प्रैक्टिस कर लिया, मतलब जो समझ में आया वो समझ में आया, जो नहीं आया वो रट दिया। थियोरम्स, प्रमेय। एग्जाम में बैठा तो आई स्कोर्ड 63 बोर्ड में, और स्कूल में मेरा आया 3rd रैंक। अचानक मेरे को फेम जैसा बोलते हैं ना कि वो 3rd रैंक, जिससे उम्मीद नहीं थी वो 3rd रैंक पर आ गया। तो वो पिताजी जो ऐसे कंधे झुकाकर स्कूल गए थे जब 6 मार्क आए थे, अब वो गए हैं तो एक अलग मोटिवेशन के साथ प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। उसके बाद ये मैंने एक अपना नियम बना लिया कि जो भी काम करूंगा अब पूरे मन से करूंगा, और वहीं से मैनेजमेंट का लेसन निकल कर सामने आता है जी। जब हम कहते हैं मैनेजमेंट, संचालन, तो मैं उसको इस तरह ब्रेक करता हूं, सत्य प्लस चालन। अच्छा चालन, और अच्छा चलाने के लिए मुझे पहले बाहर नहीं देखना, पहले मुझे भीतर देखना है। भीतर अच्छा चल रहा है ना, माइंडसेट प्रोग्रेसिव है, तो बाहर प्रोग्रेस है। अंदर अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो बाहर प्रोग्रेस नहीं है। यहां से मेरा मैनेजमेंट की यात्रा शुरू हुई। 11th में फिर कॉमर्स लिया, 12th में टॉप किया स्कूल, सेम प्रिंसिपल, अब इतनी बड़ाई कर रहे हैं, ओहो यू आर द चैंप। तब मुझे समझ में आया कि एजुकेशन में अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं और आपका ये शो देख रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सजेशन नहीं दूंगा, दैट यू गिव योर बेस्ट, और अंदर अच्छा चालन रखो, बाहर चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। राइट। यही फर्स्ट एक लेसन मैनेजमेंट यहाँ से शुरू होना चाहिए, जो मैं मानता हूँ। वाह, સત્ચાલન એટલે મનમાં પોઝિટિવિટી રાખો, પ્રોગ્રેસિવ તમારા વિચારો રાખો। હા, વાત તો સાચી છે સાહેબ, પણ બધાને હવે એવી તકલીફ છે કે મેનેજમેન્ટની શરૂઆત એટલે એવી રીતે કરે છે બધા કે પહેલાં તો દિવસ આખો મેનેજ કરવો કેવી રીતે। એટલે મને તો એવું લાગે છે કે આપણી લડાઈ આપણી પોતાની સાથે જ વધારે હોય છે ને, કારણ કે પેલું સવારે કેટલા વાગે ઉઠવું ત્યાંથી આ મેનેજમેન્ટ શરૂ થાય છે। એક્ઝેક્ટલી। તો તમે આ પ્રકારના મેનેજમેન્ટને કઈ રીતે જુઓ છો કે માણસે સૌથી બેઝિક મેનેજમેન્ટની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી જોઈએ? આ તો તમે કીધું કે અંદરથી જ તમે પહેલાં નક્કી કરો, પણ આમ આપણે જો ઓન પેપર વાત કરવા જઈએ તો સૌથી અગત્યની વસ્તુ શું છે? જે કોઈ પણ કોમન માણસ છે એને મેનેજમેન્ટમાં કંઈ કરવું છે કે નહીં, પણ એ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો એની લાઈફ બદલાઈ જાય? तो अपनी जो लाइफ है, जो लाइफ है हमारी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम दोनों ने लाइफ में ऐसे निर्णय लिए हैं, उनका नतीजा है ये इंटरेक्शन। यस। लाइफ इज अबाउट मेकिंग डिसीजंस, राइट या रॉन्ग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भोगने पड़ते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कैसे सही निर्णय लें। आप बोल रहे हो कि लाइफ डिसीजन मेकिंग
इम्पॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट में भी आप देखो, MBA लोग करते हैं, जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं या जो हमारी संस्था है, हम लोग फोकस करते हैं केस स्टडी मेथड पर। केस स्टडी इज व्हाट वी वांट टू मेक यू डिसीजन मेकर्स। यस। हम आपकी निर्णय शक्ति डेवलप कर रहे हैं। तो निर्णय कैसे सही लें, लाइफ की जब बात आती है, तो मैं अक्सर उनको एक एग्जाम्पल देता हूं ऋग्वेद से। और मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, और ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, जो कॉलेज नहीं गए, जो मैनेजमेंट नहीं पढ़े हैं। उन्होंने बताया कि 5 ऋण हैं हम सब पर, हर व्यक्ति पर, जो जिसने धरती पर जन्म लिया उस पर 5 ऋण हैं। सबसे पहला ऋण है भू ऋण, यानी इस पर्यावरण का ऋण, मदर अर्थ। दूसरा ऋण है पितृ ऋण, हमारे पेरेंट्स का ऋण, हम उनका कर्जा नहीं चुका सकते। तीसरा ऋण नृ ऋण, हर दूसरे व्यक्ति का और लिविंग बीइंग का ऋण। तो आपका ऋण है मुझ पर, और शायद मेरा ऋण आप पर है, क्योंकि आपसे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो इट्स अ डेट, आई कैन नॉट पे दिस डेट। चौथा ऋण ऋषि ऋण, टीचर्स, गुरु, मेंटर्स का ऋण। और 5वां ऋण देव ऋण, दैट सुपरनेचुरल पावर जो असर करता है हमारी लाइफ को। मैं स्टूडेंट से कहता हूं, आप कोई भी फैसला लो लाइफ का, ये 5 ऋण पर एक बार विचार करो, उनको वेटेज दो, और आपको स्कोर अगर मैक्सिमम मिल रहा है वो फैसला लेने से, गो विद इट। और लगता है कि ये काम करने से मेरा पेरेंट्स को कैसा लगेगा, तो स्कूल कॉलेजेस में लड़कों को मैं अक्सर बोलता हूं कि भाई मैं एक फैकल्टी हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि आप गलत आदतों की तरफ ना जाएं। फिर भी देखते हैं कि भाई चलो जमाना ऐसा है, स्मोक कर लिया। तो मैं इस तरह इस बात को उनको कहता हूं कि अगर मैं स्मोक कर रहा हूं, या जब कॉलेज में थे और मैंने कभी स्मोक कर लिया, तो विचार ये आना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, क्या इससे मैं जिन 5 पार्टीज के ऋण की बात कर रहा हूं उनको अच्छा लगेगा, क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है वहां पे। आई डोंट थिंक दुनिया में कोई ऐसा बोलेगा हाँ उनको अच्छा लगेगा, यानी वो फैसला गलत है, मुझे उससे गेट रिड होना चाहिए। इन 5 ऋणों पर आप विचार करें फैसला लेने से पहले, आपके मोस्ट ऑफ द डिसीजंस विल बी इन द राइट डायरेक्शन। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऋण अनुबंध, ऋग्वेद के अंदर। अब कितना अच्छा मैनेजमेंट का लेसन है। जब उसको मैं केस स्टडी से रिलेट करता हूं, तो केस स्टडी में भी ज्यादातर फैसले लेने से पहले हम स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हैं। और जब मैं मेरी केस स्टडी, मेरी लाइफ की बात कर रहा हूं, मेरी लाइफ के स्टेक होल्डर्स कौन है? ये 5 पार्टीज हैं। मुझे इनका क्या, इन पर क्या मतलब बीतेगी या इन पर क्या असर पड़ेगा। दैट इज हाउ यू कैरी इट फर्दर, आप इसको आगे ले जाते हैं। તો વાત તો બહુ મજાની છે કે એ આવા 5 લોકો છે કે જેમને તમે કંઈ પણ કરો એ ઋણ ચૂકવી નથી જ શકવાના, પણ કંઈક ખોટું કરીને એમને તમે હર્ટ કરો છો અથવા એમને ન ગમતું કામ કરીને એમાં વધારો કરો છો, જે ના કરવું જોઈએ। અને વાત સાચી છે કે નિર્ણય લેવો કેવી રીતે, તો એ નિર્ણય લેવા માટે તમને આ એક વસ્તુ હેલ્પ કરે છે। તમે વાત કરી સર વિદ્યાર્થીઓની, તમે કેટલાય સમયથી વિદ્યાર્થીઓથી જ ઘેરાયેલા છો, તો આજની એક પેઢી આખી અલગ છે, એનાથી તમે ઘેરાયેલા છો। તો એવા કોઈ રસપ્રદ કિસ્સાઓ તમને યાદ આવતો હોય કે જેમાં વિદ્યાર્થીએ તમને એમ કંઈક આમ એવી વાત કરી હોય અને તમને એમ થયું હોય કે અરે હા, આ તો મારા માટે જ એક લેસન છે, કે આ બહુ સરસ ઉદાહરણ છે કે મારે આને યાદ રાખવું જોઈએ, અને તમે પ્રેઝન્ટ કરતા હો, એવી કોઈ વિદ્યાર્થી દ્વારા તમને કંઈ મળ્યું છે ક્યારે? ऐसे बहुत किस्से हैं जी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मैं बनारस में एक सेशन दे रहा था, लेक्चर था मेरा, एंड टाइटल ऑफ द लेक्चर वाज डेवलपिंग अ विनिंग एटीट्यूड इन करियर। यस। और मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा था एंटरप्रेन्योरशिप का, और एजुकेशन तो है ही। तो एक स्टूडेंट एकदम लास्ट बेंच पर बैठा था, तो उसने हाथ ऊपर किया, सर आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन। तो उसने बोला, सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, वो नहीं पढ़े। हाँ। फिर उसने 2-3 नाम और लिए
हाँ, कि ये लोग भी कभी स्कूल Drop कॉलेज outs नहीं हैं गए या वगैरह। कॉलेज ड्रॉप आउट हम है। बिल गेट्स की बात कर देते हैं, स्टीव और जॉब्स स्टीव की बात करते हैं, कर drop देते हैं। out है। हमेशा वही उदाहरण देते हैं कि ये सारे ड्रॉप आउट्स है। ये सारे ड्रॉप आउट है। धीरू भाई अंबानी भी शायद ज्यादा नहीं पढ़े, सर देखो कितना बड़ा बिजनेस बना लिया। आप बोल रहे हो एजुकेशन के बाद एंटरप्रेन्योरशिप आपको फल देगा। हाँ हाँ मैं एक बार विचार में पड़ गया कि एग्जाम्पल तो सही लिए हैं, हाँ बट फिर मैंने उसको एक आंसर दिया और वो उस टाइम पे रैंडमली मुझसे निकल गया। बाद में मैंने सोचा, मैं बोला यार ये तो बहुत सही निकल गया उस टाइम पे। हाँ मैंने उसको बोला देख बेटा, किसी भी चीज को 3 चीजें उचित के अनुचित बनावे छे। भाई क्या उचित है और क्या अनुचित है 3 चीजों पे निर्भर करता है। तो ये बात उचित है कि अपने टाइम पर आपके पिताजी ने एजुकेशन नहीं लिया, अपना काम किया, वो सक्सेसफुल हुए, अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग। देश, काल और कुल। तो तुम जो एग्जाम्पल मुझे दे रहे हो, उन लोगों के एग्जाम्पल दे रहे हो जिन्होंने अपने करियर आज से 30-40 साल पहले शुरू किए थे। जी। उस टाइम सिचुएशन वॉज डिफरेंट, परिस्थितियां अलग, अलग, समय अलग। बिल्कुल। लेकिन अब तुम इनके आगे की तरफ देखो। आज जितने भी स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं, हाँ जो सो कॉल्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं या जिनके आईपीओ आ गए, आप उन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स का प्रोफाइल देखो। IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, ISP, दूसरी प्रतिष्ठित संस्थाओं से वो पास आउट है। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहां पर मैंने MBA कर लिया इतना काफी नहीं है। कहां से किया, हाँ कौन सी संस्था से किया, या फॉरेन से किया। ब्रांड मैटर्स। आज हम जिस समय में जी रहे हैं, उस समय में तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बनेगा तुम्हारी प्रोफाइल से, और तुम्हारी प्रोफाइल मदद करेगी तुम्हें आगे बढ़ने में और इन्वेस्टमेंट दिलाने में। दिस वॉज माई आंसर। तो कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में रखते हैं और उनको पकड़ के बैठे रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, कि ये मेरा, बोलते हैं ना कि मेरा आदर्श है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, रोल मॉडल है जी। बट वो रोल मॉडल का करियर जब शुरू हुआ था और आज तुम्हारा जब करियर शुरू हो रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। वो सोचना पड़ेगा। બિલકુલ બિલકુલ એટલે આ એવું છે કે આપણે ગમતી વાત પકડી લઈએ છીએ કે સ્કૂલ ડ્રોપ આઉટ છે, પણ એમણે એ ડ્રોપ આઉટ થયા પછી કેટલી બધી મહેનત કરી પોતાના સ્કિલ પર, પોતાના જેને ક્રાફ્ટ પર, અને એને ડેવલપ કર્યું, એ વાત આપણે કરતા નથી. આપણે આપણો ગમતો મુદ્દો એમાંથી ઉપાડી લઈએ છીએ, જેમાં આપણે, મેં પહેલાં જ વાત કરી એમ, અલસસ્ય કુતો વિદ્યા. જ્યારે આળસ જ છે તો વિદ્યા આવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, ત્યારે તમે તમારા ઇઝી રસ્તા કાઢી લો છો. સર, તમે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતે આખી વાત સમજાવતા હો છો, તમારા સેમિનાર્સ હોય કે તમારા ક્લાસીસ હોય, અને ખાસ કરીને એક મને રસ પડે એવી વાત હોય છે ફિલ્મો, એના ઉદાહરણને એની સાથે જોડીને. તો એ શું છે, એ કેવી રીતે આપ એને મેચ કરતા હો છો? કારણ કે મેનેજમેન્ટ કંઈક અલગ જ વાત કરે છે, ફિલ્મ્સની વાત કંઈક અલગ હોય છે. હમણાં પણ તો આપણે જ્યારે અહીં બેસવાના હતા ત્યારે એક અભિષેક બચ્ચનનો કંઈક તમે જબરજસ્ત વાત કરી અને એને બહુ રિલેટ સરસ રીતે કરી. તો એ શું હોય છે વાત? સો मैनेजमेंट एंड लाइफ लेसन्स थ्रू मूवीज યસ. या थ्रू सिनेमा। कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स मूवीज से मिलते हैं दैट इट हेल्प्स अस एज फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स को याद रखने में, क्योंकि समझदारी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जी. आज फोकस उसी पर है। तो मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई गुरु फिल्म मुझे बहुत बढ़िया लगती है। उसमें चाहे वो लास्ट 8 मिनट का जो अभिषेक बच्चन का कोर्ट सीन है, उसमें जो वो स्पीच देता है, जी. पब्लिक स्पीकिंग अगर सीखनी है तो वहां से बहुत लेसन्स मिलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की हम बातें करते हैं। अभिषेक बच्चन का उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैशन है वो कई जगह मूवी में दिखाया है। उसमें से एक पर्टिकुलर जो किस्सा है जिसमें अभिषेक बच्चन अपने गांव में अपने दोस्त के पास बैठा है, वो तुर्की से वापस आ गया है यस. और उसका दोस्त उसको पूछता है आगे क्या सोचा है। हाँ बोलता है सोचा क्या है, धंधा करेंगे, बिजनेस। हाँ બીજું. तो उसके दोस्त का पिता ब्याज पर पैसे देता है, वो साहूकार है।
तो उसका दोस्त बोलता है बापू ने तो पैसा चढ़ाना बंद कर दिया है, बहन की शादी के लिए बचा के रखा है। अभिषेक बच्चन विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड बोलता है मैं करता हूं ना शादी। उसने देखा नहीं है हाँ कि इसकी बहन देखती कैसी है, हाँ नहीं, उसको सिर्फ अपना विजन दिख रहा है। यस और हमारी लाइफ में वो कौन सी चीज है जो रोज सुबह मुझे उठाएगी और धक्का मारे? क्योंकि आप देखो हमारे आसपास जो लोग हैं, अगर वो भी धक्का लगाएंगे टेम्पररी। हाँ अगर मैं स्टूडेंट हूं और पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, हाँ नहीं सीख रहा हूं, तो टीचर्स भी एक टाइम के बाद उम्मीद छोड़ देंगे, बिल्कुल पेरेंट्स भी एक टाइम के बाद उम्मीद छोड़ देंगे। बट वो कौन सी चीज है जो मुझे दौड़ाएगी? वो है मेरा विजन, पर्सनल विजन, जो मुझे सुबह उठाएगा कि हाँ मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये काम करना है। राइट ये जो विजन मिशन हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को समझाते हैं, हाँ तो आई टेक एग्जांपल्स ऑफ दीज मूवीज। वाह तो विजन वैसे समझ लिया। हाँ फिर एक बहुत अच्छा मूवी है, इटालियन मूवी, हाँ लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। उसमें जिस तरह वो फिल्म का हीरो हाँ जब उसका परिवार अलग हो जाता है कंसंट्रेशन कैंप में और नाजीज कंसंट्रेशन कैंप में, और वो अपने बेटे को समझाता है कि बेटा ये गेम चल रहा है, गेम है। द इमोशन विच पॉर्स इन, यस यानी इमोशन इज ज्यूस ऑफ आवर लाइफ। हाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे में इमोशंस नहीं है, राइट वो अपने आप में एक इमोशन है। करेक्ट तो इट इज ज्यूस ऑफ लाइफ। यस और आज जो ज़माना है वो ज़माना है अपनी बात को इमोशन के साथ रखने का। इफ़ आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर रहा है, कर रहा है। तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग सर्वाइव और ग्रो करूंगा कैसे? वहां आएंगे मेरे इमोशंस। यस इमोशनली इंटेलिजेंट में हूं, मैं लाइफ में आगे जाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। તો મજા પડી રહી છે. ઇનફેક્ટ મેં ક્યારે મેનેજમેન્ટમાં રસ નથી લીધો, પણ હવે એવું લાગે છે કે લીધો હોય અને જો પારીખ સાહેબ જેવા ગુરુ મળ્યા હોય તો આપણે મેનેજમેન્ટમાં પણ આગળ વધી શકીએ, કારણ કે એટલી સરસ મજાની વાતો થઈ રહી છે. આ વાતોનો દોર આગળ ચાલવાનો છે. અત્યારે સમય છે વિરામનો, તો મળીએ વિરામને પેલે પાર. ગુડ મોર્નિંગ ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે વિરામ બાદ આપનું. અને ડૉક્ટર પ્રશાંત સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મેનેજમેન્ટ વિષયક. અને મને એવું લાગ્યું જ નહીં કે આપણે મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ છીએ. આ વાત તો રોજ થવી જોઈએ એવી વાતો આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો એવી જ બીજી વાતો પણ જાણીએ. સર, તમે આ એક તો વિઝનની વાત બહુ સરસ રીતે સમજાવી આ ફિલ્મના ઉદાહરણથી. બીજો એવો કયો મેનેજમેન્ટનો જે મેઇન કોઈ મુદ્દો છે જેની પર વાત થઈ શકે અને એ આવી જ કોઈક રીતે તો એ સરળતાથી લોકો સમજી શકે? एक छोटी सी कहानी है. प्लीज सर. एक आदमी सूट बूट पहनकर एक मार्केट में जाता है, एंड ये मेरी फेवरेट कहानी है. 80% ऑफ द सेशंस में मैंने ये सुनाई है. वाह. तो मार्केट में जाता है, उसे सेकंड फ्लोर पे जाना है. तो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचता है, लिफ्ट बंद है. तो अब दूसरा ऑप्शन सीढ़ी चढ़ के जाना है. जी. ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक लड़का मिलता है, उस आदमी को, कि साहब बूट पॉलिश करावी लो, 5 रुपया में एकदम चकाचक. वो आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मारी मीटिंग है ने मने मोड़ू थाय छे. वो सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है. फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़का है जो उससे कहता है सर 5 रुपए में जूते पॉलिश करवा लो, मैं एकदम चमका दूंगा. वो आदमी कहता है दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने, एक तो लिफ्ट बंद है, सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है और लेट हो रहा है. उसको भी भगा दिया. अब सेकंड फ्लोर पे एक और बूट पॉलिश करने वाला लड़का खड़ा है. वो ऑब्जर्व कर रहा है. ग्राउंड फ्लोर वाले को मना कर दिया, फर्स्ट फ्लोर वाले को मना कर दिया. जैसे ही ये आदमी सेकंड फ्लोर की सीढ़ी चढ़ता है, ये लड़का गिनती शुरू करता है. 95, 96, 97,
98, 99, 100 बोलते ही वो आदमी उसके सामने आता है। ये लड़का हाथ जोड़कर उसको बोलता है, नमस्ते सर, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मैं घर से सोच कर आया था, जो मेरा 100th कस्टमर होगा मैं उसके जूते फ्री में पॉलिश करूंगा। प्लीज आपके जूते उतारो, मैं चमका दूंगा। नीचे उसके पास टाइम नहीं था उस आदमी के पास, फ्री सुनते ही जूते उतार दिए। लड़का ब्रश लेकर चालू, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, और उसने जूते चमकाकर आदमी को दिए। आदमी ने बोला, कितने रुपए लेते हो? वो बोला 5 रुपए, लेकिन आपके लिए फ्री। उसने 10 रुपए निकाले, बोले ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट, और चला गया। जैसे ही वो गया, इस लड़के ने फिर गिनती चालू कर दी, 96, 97, 98, 99, 100, 101। नमस्ते सर, आज मेरा हैप्पी बर्थडे, आप मेरे 101वें कस्टमर हो। नीचे उन दोनों लड़कों को 5 रुपए नहीं मिल रहे हैं, इसको हर पॉलिश पर 10 रुपए मिल रहे हैं। यहां से आगे मैं उन स्टूडेंट्स को फिर बताता हूं, क्वेश्चन पोज करता हूं कि बताओ अब तुम इसमें समझे क्या, और फिर मैं एक अपना आंसर देता हूं। सबसे पहले वो लड़का जानता है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मार्केट सेम, बिजनेस तीनों का सेम, जेंडर भी तीनों का सेम, लड़के हैं, तीनों के लिए परिस्थिति सेम, तीनों की सर्विस सेम, यानी उनका प्रोडक्ट सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी मार्केट में कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। वाह। माइंडसेट का फर्क है, इमोशन का फर्क है, और अपनी बात को रखने का फर्क है। यू वीव स्टोरी। आदमी कहानी सुनकर आकर्षित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग का जमाना है। बिल्कुल। हम लोगों का जो परवरिश हुआ है सबका, वो उसमें कहानियों का योगदान बहुत तगड़ा है, और हर वर्ग को कहानी आकर्षित करती है, बट उसके लिए रेलेवेंट होना चाहिए। और वो लड़का ये समझता है। तो इस तरह हम अलग अलग मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स अलग अलग ढंग से समझते हैं। क्या बात है। तो તમારો ક્લાસ ઓફકોર્સ એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેતો હશે, કારણ કે આમાં તો મજા જ પડી રહી છે। પણ મારે એ જ જાણવું છે કે હવેના સમયમાં સ્ટુડન્ટ્સ જે આવે છે, એક તો બહુ ચેલેન્જિંગ વાત એ થઈ ગઈ છે કે ટીચર જે ભણાવવાના છે ઘણીવાર તો એ જાતે સોશિયલ મીડિયા પરથી એઆઈથી જાણીને આવે છે। તો હવે ભણાવવાની પદ્ધતિમાં શું બદલાવ લાવવો જોઈએ અથવા છે, અને સ્ટુડન્ટનો અપ્રોચ શું બદલાયો? पहले ऐसा था कि स्टूडेंट के पास रेफर करने के ऑप्शंस कम थे। जब हम पढ़ते थे तो यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट का भी इतना स्पीड नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे। अब सब कुछ हाथ में है, क्लिक अवे। इनफैक्ट आप जो पढ़ा रहे हैं वो वेरीफाई भी हो रहा है कई बार क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब सिर्फ पढ़ाना ही रोल नहीं है, और आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा रोल, मटेरियल तो बहुत है, बट वो मटेरियल कंफ्यूज भी करता है। ज्यादा ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं कि भाई एंट्रेंस एग्जाम हो रही है, 4 ऑप्शन है, 5 कर दिए, आप और कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज आप देखो, जब हम पढ़ते थे तब कंफ्यूजन हम लोगों में कम था जी, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये बुक पढ़नी है, या मुझे ये स्वाध्याय पोथी खत्म करनी है, राइट। मैथ्स का मुझे ये गाइड पूरा कर देना है, जिसको अभ्यास पुस्तिका बोलते थे। अब ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स करो, ये चैनल देखो, इस तरह सीखो, यानी हम डोज हैवी कर रहे हैं। व्यक्ति वही है, कैपेसिटी भी उतनी लिमिटेड है। ऐसी सिचुएशन में टीचर का एक और रोल है क्यूरेटर का, दैट यू क्रिएट मटेरियल जो उसके लिए बहुत रेलेवेंट हो, और आप उसको वो मटेरियल रेफर कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा। राइट। पहले ये बर्डन नहीं था, अब वो बर्डन भी एक है। तीसरा, मैं एक कोर्स करने गया था IIM में। मुझे वहाँ के प्रोफेसर्स की एक बात जो बहुत पसंद आई, भाई कोर्स में वो हमें केस स्टडी देते थे एक दिन पहले,
कि सर ये कल डिस्कस करेंगे, मैं एक पार्टिसिपेंट हूं, वो केस स्टडी मैंने पहले भी पढ़ा है, तो मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में जाऊंगा, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस कि केस तो मैं भी पढ़ाता हूं, मैंने भी तो किया है। हाँ, पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन वो प्रोफेसर ऐसा पोज करेगा कि मैं 5 साल से वो केस करा रहा हूं लेकिन वो एंगल पे मैंने सोचा नहीं। यानी द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज इंपॉर्टेंट। राइट। टीचर को क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम करके स्टूडेंट को देने होंगे जो उसकी थिंकिंग को डेवलप करे। हाँ, अब वो और जरूरी हो गया है क्योंकि हर चीज आप देखो, आप रोक नहीं पाएंगे, एआई का यूज होगा, हम कोई नहीं रोक सकते उसे। यस, ऐसी सिचुएशन में ऐसा असाइनमेंट दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएं जो उसको सोचने पे मजबूर करें कि सोचना पड़ेगा। एआई पर जाने से भी मेरी पार पड़ी नहीं है। ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણે ક્રિટિકલ થિંકિંગ ડેવલપ કર્યું સ્ટુડન્ટની અંદર। રાઈટ। તો अब રોલ ટીચર, ક્યુરેટર एंड the one who poses good questions, यस, logical questions, लॉजिकल क्वेश्चंस। क्योंकि हम बड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस पढ़ के जो पाठ के अंत में छपे हुए होते थे। होते हैं। अभी तक वही सिस्टम मैं कई यूनिवर्सिटीज में देखता हूँ, स्कूल्स में देखता हूँ। हाँ। अब वक्त बदल गया है। हाँ, अब टीचर को भी क्वेश्चन बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी राइट। और वो क्वेश्चन स्टूडेंट को आपको पूछने पड़ेंगे, तो आप उसको एक तरह से एनकरेज कर रहे हो, सोचने पर मजबूर कर रहे हो, तब वो एक मजा आएगा। क्रिटिकल थिंकर आपने बनाया समाज के लिए, हाँ, 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 वो चीज है। वो ચીજ है સર। સર, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓમાં અત્યારે જોવા મળે છે કે દિશાહીન છે, ક્લૂલેસ છે, ક્યાં જવું, શું કરવું। પછી એનો તો જો કે આપે પહેલા જવાબ આપ્યો કે નિર્ણય શક્તિ કેવી રીતે એ કરી શકાય, પણ સ્ટ્રેસ જે બહુ વધતો જાય છે, અથવા તો જેને એ લોકો સ્ટ્રેસ કહે છે, એ બહુ જ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। ના સ્કૂલના છોકરાઓ પણ સ્ટ્રેસમાં છે, કોલેજવાળા પણ સ્ટ્રેસમાં છે, तो શું કરવું જોઈએ એ લોકોએ આનો ઉકેલ લાવવા માટે? नहीं, स्ट्रेस की जब बात आती है ना, तो अभी हाँ। जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, हाँ, मैं भी स्ट्रेस में हूँ। भाई मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, स्ट्रेस तो मुझ में भी है। हाँ, क्या पता मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं जो किसी को बुरा लग जाए। हाँ, हाँ, अब स्ट्रेस लेना हाँ, कोई गलत बात नहीं है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आप में से कितने लोगों को स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए? तो पूरी क्लास हाथ ऊपर हाँ, कर दी। बिल्कुल। मैं बोला चलो चलते हैं शमशान घाट। वहां पर लोग लेटे हैं, उनको स्ट्रेस कोई स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि अगर आप जीवन में सांस ले रहे हो हाँ, और स्ट्रेस है, हाँ, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आपकी नजर है, राइट, कि आप मेरे को प्रॉब्लम्स भेज रहे हो, स्ट्रेस भेज रहे हो। राइट, स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस इज गुड फॉर आवर करियर। राइट, तो स्ट्रेस अगर मैं लूंगा और कुछ करूंगा नहीं, इफ इट इज नॉट एक्शन बैक्ड नहीं है, तो वो स्ट्रेस फिर नुकसानकारक है। लेकिन मैं स्ट्रेस लेकर एक्शन कुछ कर रहा हूं, यानी मैं उसको पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी चीज है। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं बोलते हैं सर स्ट्रेस है, कैट एग्जाम आ रही है नवंबर में, स्ट्रेस है, सीए का एग्जाम है, स्ट्रेस है, नीट। मैं बोला अगर तुम्हें स्ट्रेस है तो तुम कर क्या रहे हो? बोले सर 12 घंटे पढ़ रहा हूं। मैं बोला बस भगवान करे ये स्ट्रेस बना रहे। ये स्ट्रेस तुम्हारे एग्जाम के लास्ट डेट तक ना जाए, मैं तो यही चाहता हूं। हाँ, फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं सर कुछ नहीं कर रहे। मैं बोला तो समझ लो गड़बड़ हो गई है। एग्जाम देने से पहले तुम हार चुके हो, युद्ध लड़ने से पहले तुमने हथियार रख दिए हैं। वो स्ट्रेस गलत है जी। तो लाइफ में चाहे कोई और भी एंगल ले लो, आप कोई और सिचुएशन ले लीजिए, स्ट्रेस ले लिया
फिर किया क्या? हाँ, वो स्ट्रेस लेकर मैंने खुद को ही खराब कर लिया या स्ट्रेस लेकर मैंने परिस्थिति बदल दी? वो फर्क है। तो स्टूडेंट्स को मेरी यही राय रहती है, स्ट्रेस लो, भगवान करे खूब स्ट्रेस आए तुमको, और वो स्ट्रेस तुम्हें मजबूर करे अपने विजन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। वाह तो स्ट्रेस भगवान तुम्हें देता रहे। સર આપે 7 બુક્સ લખી છે ઓથર તરીકે, તો એક તો આટલું બધું આપ જે મેનેજમેન્ટ વિષય પર વાત કરો છો એમાં બુક્સ, તો આ બુક્સમાં શું છે ખાસ, શું અલગ અલગ છે આ વિષયોમાં? तो एक बुक हमने लिखी 2022 में, જી उसको पब्लिश किया माइका, एक संस्था है जी, अहमदाबाद जी, में, प्रतिष्ठित संस्था है। बहुत प्रतिष्ठित वो बुक का टाइटल है ब्रांड मैजिक, ब्रांड मैजिक। द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग सक्सेसफुल ब्रांड्स। उसमें हमने 10 ऐसी ब्रांड्स की कहानी लिखी है जिनकी उत्पत्ति गुजरात से हुई। अच्छा, बालाजी वेफर्स, हाँ, हैवमोर आइसक्रीम, एस्ट्रल पाइप्स, रसना, अमूल, निरमा, ऐसी ब्रांड्स हैं 10। और उनकी सफलता में मार्केटिंग का रोल, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन का रोल क्या रहा, यस, वो एक एंगल उसमें बुक में है। तो एक बुक वो है। फिर एक बुक है मेरा, इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सोमनाथ कैसे बने, सोमनाथ कैसे बना, घुश्मेश्वर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, नारद ऋषि का अभिमान जब टूटा तो रामायण वहां से कैसे बनती है, ऐसी चीजें ढूंढी और वो मिली हिंदी में, संस्कृत में, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा। अरे वाह, वो तब लिखा जब एआई नहीं था। तो कोई ये नहीं कह सकता एआई से लिख दिया AI होगा। से। एआई आने के पहले वो हो गया। जी, तो एक वो बुक है जो बहुत अच्छा, मतलब उसको रीडर्स ने सराहा। बिल्कुल। फिर हिंदी में 2 बुक्स हैं मेरी। एक है लोक कथाएं वृंदावन से। अच्छा, तो 2018 में हम वृंदावन गए। वहाँ वृंदावन में आप किसी मंदिर में जाएं तो मैं क्या करता था, 20 रुपए पुजारी जी को देता था और ऐसे ही बातचीत करता था। मेरा पर्पस एक ही था वृंदावन जाने का कि वहाँ कृष्ण भगवान से रिलेटेड जितनी भी कथाएं हैं हाँ, लोगों की, हाँ, वो मैं इकट्ठी कर लूं। वाह, तो वो मुझे कथा सुनाते। हाँ, मैं क्वेश्चन इस तरह पूछता कि कोई ना कोई कहानी निकले, हाँ, और जहां कहानी नहीं है वहां से फिर मैं निकल जाता, चलो दूसरे मंदिर में। फिर फटाफट उस कहानी को नोट डाउन कर लिया राइट, या फोन में रिकॉर्ड कर लेता कि बाद में लिखना है। हाँ, ऐसा करके 25-30 कहानी इकट्ठी की और फिर उस पर से एक बुक पब्लिश किया। उसका टाइटल ही दिया लोक कथाएं वृंदावन से। फिर एक फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट पर बुक लिखा हाँ, जो अमेज़न बेस्ट सेलर भी हुआ, वाह, कि भाई फैमिली बिजनेस में मार्केटिंग, फैमिली बिजनेसेस की, वो क्या रोल प्ले करती है। राइट, क्योंकि दुनिया के 80% बिजनेस आर फैमिली बिजनेस। आज स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी बिजनेस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं जिन ब्रांड्स में वो फैमिली बिजनेसेस हैं। रिलायंस में जाना है, फैमिली बिजनेस, अडानी में जाना है, फैमिली बिजनेस, बजाज में जाना है, निरमा में जाना है, फैमिली बिजनेस का रोल बहुत तगड़ा है। तो इस तरह की का लेखन कार्य मैं करता रहता हूँ। पर ये तो बहुत विस्तृत है और वाइब्रेंट है, क्योंकि कहाँ आप वृंदावन में चले जाते हो और कहाँ फैमिली बिजनेस पे आप बात करते हो। उसमें ऐसा है, हाँ ये भी एक है कि भाई इसमें कोई थ्रेड नहीं है। हाँ। आप इसको एक कड़ी में कैसे जोड़ते नहीं, हो। हाँ, एक ही टाइप के आप राइटर नहीं हो कि जो एक ही विषयों पर एक ही तरह की बातें करते हैं। वो उसका रीज़न है। मैं ये मानता हूँ कि भाई मेरे मन में कुछ लिखने की इच्छा हुई, वो काम मुझे ख़त्म कर देना है।
और जानकारी मिल रही है, हाँ, कुछ अच्छा कर रहा हूं तो करो, और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वाह, और फिर आगे प्रेरणा और मिल रही है, तो वो काम मुझे करना है। करना है, तो इस वजह से आप देखेंगे कोई एक कड़ी में नहीं लिखा है, बिल्कुल, अलग अलग है। माइथोलॉजी कभी है, कभी हिंदी बुक आ गया, फिर इंग्लिश में ब्रांड्स के ऊपर आ गया, कभी फैमिली बिजनेस पर आ गया। बट वो एक साल, जैसे अगले साल हो सकता है कोई नया विषय हो। अभी मतलब बात ही चल रही है, मैं और मेरे एक मित्र, हम पहली बार कविताएं लिखने का सोच रहे हैं। कविताएं लिखेंगे हिंदी में, फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश और गुजराती में। वाह, हम ये सोच रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। तो अगले साल हो सकता है कविताओं का एक बुक आप देखें। क्या बात, बट मज़ा आ रहा है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है और सीखने को मिलता है। बस मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। राइट। सर, कोई 2 लेसन्स जो अभी तक आपने हमें नहीं बताए हैं, तो सबको जो जानने चाहिए, मैनेजमेंट हो या और कोई चीज़, वो 2 लेसन्स क्या होने चाहिए, वो आप लोगों को बताइए। फर्स्ट लेसन देखिए, महाभारत में हाँ, एक शांति पर्व में, हाँ, मतलब खत्म होती है महाभारत, तब एक श्लोक महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, इतिहास प्रदीपेन मोहावरण घातिन लोक गर्भ ग्रहम कृत्सन्नम यथावत संप्रकाशितम। मतलब इतिहास की जानकारी, उसका ज्ञान भविष्य में आने वाली दुविधाएं और ऑब्स्टिकल्स को दूर करता है। वाह, तो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, सर ये केस स्टडी आप दे रहे हो, वो तो हो चुका है, ये तो हो चुका। हाँ, तब मैं जस्टिफिकेशन इस श्लोक की मदद से देता हूं राइट, कि मुझे क्यों पता होना चाहिए हिस्ट्री। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं हम आईएएस लेवल की तैयारी कर लें हर कोई, बट एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए मेरा फैमिली का हिस्ट्री क्या है, मैं जिस राज्य में शहर में रहता हूं उसका हिस्ट्री क्या है, मैं अपनी जड़ों की हिस्ट्री ढूंढता हूं। राइट, क्यों? ये जानकारी मुझे बहुत काम आएगी फ्यूचर को फेस करने में। सिमिलरली जब आप पढ़ते हो, अगर आपको इतिहास की जानकारी है तो आप वो गलती कम से कम वर्तमान में नहीं करोगे। नहीं करो, एक तो ये लेसन है। हाँ, दूसरा लेसन, एक बी अ पर्सन ऑफ ट्रांजिशन। वाह, स्टीफन कवी ने अपनी किताब में लिखा है 7 हैबिट्स में कि प्रोएक्टिव किसे कहते हैं। लोग कहते हैं प्रोएक्टिव का मतलब है किसी को कहना ना पड़े और वो काम कर दे। कर दे, वो प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव वो आदमी है जो पुराने पैटर्न्स को तोड़ता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे वो टाइम पर, वो स्कूल वाला जो केस मैंने आपसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझे यही प्रेरणा दी कि बिकम प्रोएक्टिव। या तो तू कंटिन्यू रख, ठीक है सब कम पढ़े लिखे हैं, तू भी 10 क्लास पढ़ ली और बिजनेस में लग गया, हो सकता है पैसे तो कमा लेगा, बट वो पैटर्न फिर आगे नहीं टूटेगा, क्योंकि तेरे छोटे भाई बहन तुझे देखेंगे, तुम्हारे बच्चे फिर भी तुम्हें ही देखेंगे, सबसे पहला रोल मॉडल। तब वो क्या एग्जाम्पल लेंगे? तो प्रोएक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। यस, और दूसरा, नॉलेज ऑफ योर रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है સર, બહુ મજા પડી ગઈ સર. ખરેખર વાત એવી છે કે સવારમાં આમ મેનેજમેન્ટ વિષયની વાત કરવી એ ક્યારેય યોગ્ય જ ના કહેવાય, પણ જો મેનેજમેન્ટની વાત આટલી રસપ્રદ હોય અને આટલી સરળતાથી સમજાઈ જતી હોય તો આ વાત કરવી જ જોઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર કે તમે આજે અહીં આવ્યા અને અમને બધાને અમારી સવારને આટલી મિનિંગફુલ બનાવી દીધી. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ.